Hello everyone, hope you all are fine. First of all, many thanks for supporting my channel. Your appreciation and comments have supported me a lot. Keep supporting me like this. And if you haven't subscribed my channel yet, subscribe it right now and do press bell icon. So let's start the today's lecture. तो आज मैं आपके लिए लेके आऊँ लेक्चर नंबर 1 11th class chemistry. And today we will do the chapter number 2, that is called structure of atom. In this chapter the today topic that I have choose, that is quantum numbers. तो आज हम पढ़ेंगे what are quantum numbers. Okay, so let's start the lecture. So first of all, what is quantum number? What are quantum numbers? To describe each electron in an atom, to describe each electron in an atom in different orbitals, in different orbitals we need a set of numbers. We need a set of numbers, and that numbers are called quantum numbers. तो अगर हम रफली सी स्ट्रक्चर ऑफ एटम का डायग्राम देखें, जब हाउ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन अ स्ट्रक्चर ऑफ एटम. So what is there? Actually there is in the center of every atom there is very small mass. There is a species, there is a body which occupy very less space in any atom. That body is called nucleus. Okay, and in that nucleus protons and neutrons are present. Protons have positive charge, so nucleus get positive charge. And in surrounding nucleus, in particular shells, electrons revolve. So here is the electrons. So if we consider very basic structure of atom, so this is a structure of atom. In the center at very less space there is a body present. That body is called nucleus. And in nucleus there are two type of fundamental units or particles. First one is protons. Protons are positive charged species. Second one is neutrons. Neutrons have no charge. Okay, so what happened? Due to the presence of proton, nucleus acquire positive charge because neutrons have no charge. So what is nucleus? Nucleus is space. Actually, which kind of space? Very less space. Space in an atom a body is present. That is called nucleus. I hope. And surrounding nucleus, electron revolve around the shells, in particular shells. Okay, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को डिस्क्राइब करना, कौन से शेल में रिवॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, कौन से सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं,
उनकी स्पिन क्या है, उनकी ओरिएंटेशन क्या है, इस सभी को डिस्क्राइब करने के लिए, इलेक्ट्रॉन की करेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करने के लिए अराउंड द न्यूक्लियस there made a number set of numbers. That set of number is called quantum numbers. Okay, I hope clear. This is a very basic structure of atom. Separately we will do the structure of atom in another video. उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा. बस जस्ट यहाँ से बेसिक था कि what are quantum numbers. अगर हम बेसिक का स्ट्रक्चर देखें किसी भी एटम का, ठीक है, तो एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस में बहुत थोड़ी जगह घेरी होती है एटम के अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर दो स्पीशीज होती हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता. सो प्रोटॉन की वजह से न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और न्यूक्लियस के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है किसी भी स्ट्रक्चर ऑफ किसी भी एटम का. ओके, सो कीप दिस इन माइंड. तो इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, इलेक्ट्रॉन की स्पिन, ये कैसे हम पता लगाएंगे, क्या तरीके हैं, क्या मेथड्स हैं, उनको पता करने के लिए कुछ नंबर्स बनाए गए हैं. उन नंबर्स को हम बोलते हैं, दैट नंबर्स आर कॉल्ड क्वांटम नंबर्स. ओके स्टूडेंट्स, सो टुडे वी विल डिस्कस दीज व्हाट आर क्वांटम नंबर्स एंड देयर टाइप्स. ओके, तो क्वांटम नंबर करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए. तो वो टर्म कौन कौन सी हैं? लाइक फर्स्ट वन इज ऑर्बिटल. व्हाट इज ऑर्बिटल? इट इज अ रीजन इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के सराउंडिंग वो वाली स्पेस जहां पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग हो, दैट स्पेस in that region in space around the nucleus is called orbital. So what is orbital? Orbital is a region in space around the nucleus where probability of finding electron of finding electrons is maximum. Okay, so orbital is that space around the nucleus, region in space around the nucleus where probability of find electron is maximum. न्यूक्लियस के सराउंडिंग वो वाला रीजन जहां पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस हो, प्रोबेबिलिटी हो, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल. फॉर एग्जांपल लाइक दिस इज न्यूक्लियस, these are, suppose these dots represent electrons. So where the, look at here, the region in space around the nucleus where electron finding probability is maximum, that is called orbital. Like you can see here are the maximum electrons, so this can be this can be say that it is an orbital. Okay, it is anywhere around the nucleus, कहीं भी हो सकता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, उस स्पेस को, रीजन को हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल्स. और जिस पाथ में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, लाइक दिस इज अ पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, दैट पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट. So remember these two. Okay, never confuse between them. So second one is orbit. What is orbit? Path in which electrons revolve around the
nucleus. Okay, that path is called orbit. Okay, हमारा कंसर्न अभी ऑर्बिटल्स के साथ है, तो ऑर्बिटल वो वाली स्पेस है अराउंड द न्यूक्लियस जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो, मैक्सिमम हो. तो अगर हम ऑर्बिटल्स की बात करें तो ऑर्बिटल्स की डिफरेंट शेप्स होती हैं. ओके, सो शेप्स ऑफ orbitals. Orbitals are of many shapes. Like orbitals are of different shapes. For example, s orbital is spherical. For example, s orbital, s नाम ही spherical से है. s orbital is spherical in shape and p orbital is dumbbell shaped. ओके, जो p ऑर्बिटल है उसकी डम्बल शेप होती है, लाइक दैट. So this shape represent, what is it? It is a p orbital. Okay, और अगर spherical को शो करना है, s को शो करना है, s orbital को, तो s orbital can be represented like this. So what is this? This is s orbital. इसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे. जस्ट दिस इज अ बेसिक स्टार्ट किया चैप्टर, इसलिए आपको थोड़ा पता होना चाहिए. क्वांटम नंबर्स क्या हैं उसके बारे में तो आज ब्रीफली करेंगे हम. ऑर्बिटल्स क्या है ये भी पढ़ लिया. न्यूक्लियस के सराउंडिंग वो वाली जगह, वो वाली रीजन, वो वाला स्पेस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, जहाँ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दिखें, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल. और जिस पाथ में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, दैट पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट. अगर हम ऑर्बिटल्स की बात करें तो ऑर्बिटल्स आर मैनी शेप. लाइक एस ऑर्बिटल की शेप कौन सी है? इट इज स्फेरिकल इन शेप. अगर हम पी ऑर्बिटल की बात करें तो पी ऑर्बिटल की शेप कौन सी होती है? डम्बल शेप. ओके, तो डम्बल शेप एक और भी आपने याद रखना है, डम्बल शेप कहाँ करेक्टराइज्ड है. अगर हम जैसे हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, जो स्टोमेटा जो है, कॉमन प्लांट्स के जो स्टोमेटाज हैं, उनकी जो शेप है कैसी होती है? बीन शेप्ड होते हैं वो स्टोमेटाज कॉमन प्लांट्स की. बट अगर हम ग्रासेस की बात करें तो ग्रासेस के जो स्टोमेटाज हैं उन केसेस में जो शेप है स्टोमेटा की वो डम्बल होती है, डम्बल शेप. सो ये तो मैं थोड़ा आउट ऑफ केमिस्ट्री चला गया हूँ, फिर भी इट इज़ इम्पोर्टेंट कि अगर हम कॉमन स्टोमेटा की बात करें, कॉमन प्लांट्स, हायर प्लांट्स की बात करें, तो वहाँ पर स्टोमेटा की शेप बीन शेप्ड होती है. ठीक है, स्टोमेटा माइन्यूट पोर्स होते हैं लीव्स के अंदर, जिससे जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? रिस्पायर करते हैं. एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, ट्रांसपिरेशन होती है. आई होप आपको पता होगा. जस्ट मेरा मकसद बताने का यही है कि हायर प्लांट्स या कॉमन प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा की शेप बीन शेप्ड होती है, और जो ग्रासेस हैं उनके अंदर स्टोमेटा की शेप डम्बल शेप्ड होती है. क्योंकि यहाँ पर डम्बल वर्ड आया है, पी ऑर्बिटल डम्बल शेप है, तो थोड़ा इसलिए थोड़ा हट के वहाँ चला गया मैं. ओके, सो मैनी शेप्स होती हैं ऑर्बिटल्स की. लाइक एस ऑर्बिटल है स्फेरिकल शेप, पी ऑर्बिटल इज ऑफ डबल शेप. ओके, सो फाइनली वी विल डू नाउ व्हाट आर क्वांटम नंबर्स एंड देयर टाइप्स. इसके बाद अब ये करेंगे हम. इसके अलावा एक चीज और याद रखनी है आपने, कोई भी जो ऑर्बिटल है आपका, मैक्सिमम उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग आल्सो इन योर माइंड. एन ऑर्बिटल cannot accommodate more than 2 electrons. कभी भी किसी ऑर्बिटल के अंदर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं लिख सकते हम, नेवर. ठीक है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल के अंदर. ओके, सो नाउ अभी हम पढ़ेंगे व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स.
कैसे कैसे वो हेल्प करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को की डेजिग्नेशन के बारे में बताने में, एंड इट इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग एंड क्वाइट energizing topic. So let's join. Now the types of quantum number. अभी हम पढ़ेंगे कौन कौन सी टाइप्स होती हैं क्वांटम नंबर्स की जो हमें हेल्प करती हैं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताती हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के सराउंडिंग कहाँ पर हैं, उनकी स्पिन कैसी है, उनका शेल कौन सा है, उनका सब शेल कौन सा है, all things about electrons around the nucleus we can know with the help of quantum numbers. Okay, तो हम वो टाइप्स करेंगे, उसके अंदर सारा पढ़ेंगे. So let's start. Types of quantum numbers. So there are 4 types of quantum numbers. There are 4 types of quantum numbers. ओके, कौन कौन से हैं? सबसे पहले स्टूडेंट्स आपका आता है नंबर 1 is principal quantum number. Number 1 is principal quantum number. Number 2 is azimuthal quantum number. Number 3 is magnetic quantum numbers. Number 4 is spin quantum number. सो ये टोटल 4 क्वांटम नंबर्स है, सेट ऑफ नंबर्स है, ये टोटल 4 नंबर्स का सेट है, दैट इज कॉल्ड क्वांटम नंबर्स, जो हमें न्यूक्लियस के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन, इलेक्ट्रॉन कौन से मेन लेवल में है, मेन शेल में है, इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल या सब लेवल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के सराउंडिंग, और उसकी डायरेक्शन, ओरिएंटेशन कैसी है, एवरीथिंग, ठीक है, उसके बारे में जानने के लिए एक सेट ऑफ नंबर्स है, उसको हम क्वांटम नंबर्स बोलते हैं. और उस सेट ऑफ नंबर्स में 4 नंबर्स आते हैं, 4 हैं. कौन कौन से? नंबर 1 इज प्रिंसिपल, नंबर 2 इज एजीमुथल, नंबर 3 इज मैग्नेटिक, नंबर 4 इज स्पिन. सो टुडे वी विल डिस्कस, आज हम पहले 2 करेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर. सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल विद फर्स्ट वन. व्हाट इज principal quantum number? तो स्टूडेंट्स, अगर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करें तो ये हमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मेन शेल में बताता है, मेन एनर्जी लेवल कौन सा इलेक्ट्रॉन का, वो हमें किस क्वांटम नंबर से पता लगता है, दैट इज प्रिंसिपल. नाम से जैसे अंडरस्टूड है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मीन्स मेन लेवल, मेन शेल कौन सा होगा, ओके, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तो व्हाट इज इट? दिस क्वांटम नंबर टेल्स द मेन एनर्जी शेल. कैसे बताता है वो सारा साथ साथ देखते जाओ, you will easily understand. This quantum number tells the main energy shell or level.
ओके, इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की ही के बारे के पढ़ने के लिए हम ये पढ़ रहे हैं क्वांटम नंबर्स, तो हर चीज इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताएगा ये। लेवल इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। ओके, और जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसको हम स्मॉल n के साथ डेजिग्नेट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय n, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल n। ओके, इट कैन हैव होल नंबर वैल्यूज स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो n कुछ नहीं है, होल नंबर वैल्यूज है। इट कैन have whole number values, it can have whole number values starting from 1, starting from 1 such as, कैसे होगा, n कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होगा, और सो ऑन। होल नंबर क्या होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। आगे जितने भी लिख सकते हो वो आगे हम करेंगे, देखना है। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो नंबर है जो हमें क्या बताता है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग मेन एनर्जी शेल। मेन एनर्जी शेल पर यहाँ क्या मीनिंग है इस चीज़ का कि मेनली इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व कर रहे हैं, मेजर रीजन कौन सा है इलेक्ट्रॉन्स का, तो जो वो नंबर बताता है हमें, उस नंबर को हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और इसको डेजिग्नेट करते हैं स्मॉल n के साथ, और n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है। होल नंबर तो जैसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पता लगेगा हमें कि n की वैल्यू 1 है तो कौन सा लेवल है, 2 है तो कौन सा लेवल है, एंड सो ऑन। ओके, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी, और बता दिया मैंने आपको n के साथ उसको डेजिग्नेट करते हैं स्मॉल n के साथ। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें मेन एनर्जी शेल के बारे में बताएगा, कौन सा मेन लेवल है इलेक्ट्रॉन्स का अराउंड द न्यूक्लियस। और n क्या होता है, सिंपली होल नंबर है, स्टार्टेड फ्रॉम 1 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 एंड 5। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा यहाँ पर, दिस क्वांटम नंबर, कौन सा, प्रिंसिपल, दिस क्वांटम नंबर आल्सो रिगार्डेड एज शेल। शेल भी बोलते हैं इस क्वांटम नंबर को। ओके, लाइक मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं, देखने से। फॉर एग्जाम्पल, फॉर n1, अगर n की वैल्यू 1 है तो कौन सा शेल होगा, फर्स्ट शेल। ओके, आगे इन शेल्स को और डेजिग्नेट किए, नेम्स दिए गए इन शेल्स को। ओके, लाइक अगर n1 है तो उसको फर्स्ट शेल बोलेंगे, और फर्स्ट शेल का नाम क्या रखा गया है, के शेल। अब एक ऐसा नाम क्यों रखा गया वो डिस्कस करते हैं बाद में। फॉर n2, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है आपको पास दी गई है, इट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन है वो किस शेल में रिवॉल्व कर रहा है, सेकेंड शेल में रिवॉल्व कर रहा है, और उस शेल का नाम क्या है, एल शेल। फॉर n3, अगर n की वैल्यू 3 है, n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन कौन से शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन थर्ड शेल, और इस थर्ड शेल का नाम रखा गया है, दैट इज कॉल्ड एम शेल।
ऐसे ही सोन आगे तक चलता जाएगा। हम सिर्फ 4 तक करेंगे अभी इसमें। अगर n की वैल्यू 4 है तो हम बोल देंगे कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में न्यूक्लियस के सराउंडिंग रिवॉल्व कर रहा है, 4th शेल में, और इस 4th शेल का नाम रखा गया है n शेल। आई होप क्लियर है आपको, ठीक है। ये n की वैल्यूज हैं, ये शेल्स हैं। अगर n1 है तो शेल फर्स्ट है, अगर n2 है तो सेकंड शेल है, अगर n3 है तो थर्ड शेल है, अगर n4 है तो फोर्थ शेल है। लाइक बेसिक्स में पढ़ते भी आए, क्लास 9th में पढ़ा हुआ हमने। ये न्यूक्लियस है, तो जो मेन शेल, जो मेन एनर्जी लेवल न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक होता है, उस मेन शेल को हम कौन सा शेल बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड के शेल। और उसके लिए n की वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये आपने 9th क्लास में, आपको ये नहीं पता होगा n क्या होता है, अभी लग गया आपको पता। तो KLMN जो हम लिखते हैं वो हम कहाँ से लिखते हैं, वो हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स लिखते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से डेजिग्नेट करते हैं, ओके। तो जो मेन शेल है न्यूक्लियस के सबसे क्लोज होगा, उसके लिए n की वैल्यू 1 होगी और नेम होगा शेल का k, ठीक है। और उसके बाद जैसे जैसे डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, n की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। किसका एवरेज डिस्टेंस, इलेक्ट्रॉन्स का अराउंड द न्यूक्लियस। तो जो ये दूसरे नंबर पर आ रहा है शेल, इसको हम बोलते हैं L शेल। इसके लिए n की वैल्यू कितनी है, अभी लिखा मैंने 2, ठीक है। एंड सो ऑन, ऐसे हम लिख सकते हैं आगे। ठीक है, ये थर्ड नंबर वाला कौन सा है, दिस इज M शेल। इसके लिए n की वैल्यू कितनी है, 3। एंड सो ऑन आगे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेसिकली आपने यह रखना है कि जो शेल न्यूक्लियस के सबसे क्लोज है, क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, दैट हैव क्वांटम नंबर वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू, n की वैल्यू उसके लिए 1 होती है और नेम है उसका k। जितना नज़दीक होगा इलेक्ट्रॉन्स, मींस जितना एवरेज डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस से कम होगा, मींस जितने इलेक्ट्रॉन्स क्लोज होंगे न्यूक्लियस के, उतने ज़्यादा जो शेल है वो क्या होता है, स्टेबल होता है, ओके। जितने ज़्यादा स्टेबल होगा, एनर्जी उतनी कम होगी, एनर्जी उतनी कम होगी। सो बेसिकली स्टेबल क्यों होगा, अभी मैंने डिस्कस स्टार्टिंग में किया था कि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब सपोज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब आपको पता है अनलाइक चार्जेस, वैसे थ्योरीज काफ़ी सारी जो रिप्रेजेंट करती हैं फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, वो हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। दिस इज बेसिक कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो जो शेल न्यूक्लियस के बिल्कुल नज़दीक है, तो दिस इज वेरी ऑब्वियस, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, न्यूक्लियस उनको अपनी तरफ ज़्यादा खींच के रखेगा, तो बड़ी कम पॉसिबिलिटी है कि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जंप करें, नॉक डाउन हो, ठीक है। तो इसलिए हम जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक होंगे, उनके ऊपर न्यूक्लियस का इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन इजीली जंप नहीं कर पाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन इजीली जंप नहीं कर पाएंगे, अपनी ही जगह पर अगर कोई चीज़ है, कोई भी थिंग है वो, तो उसको हम स्टेबल बोलते हैं, स्टेबिलिटी है। जब कोई चीज़ स्टेबल होती है, स्टेबल कब होगी, जब मिनिमम, ठीक है, मिनिमम तो नहीं बोल सकते हम, बट अगर हम इस क्राइटेरिया को लेके चलें तो मिनिमम बोलेंगे। अगर ज़रूरत से ज़्यादा है कुछ, तो नेचुरली स्टेबिलिटी नहीं होगी। कुछ भी एग्जाम्पल ले लो, डेली लाइफ में से एग्जाम्पल ले लो, अगर ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें हैं तो हवा में ऑलरेडी, ठीक है, अगर जितनी नीड है उतना है, देन हम अपने लेवल पर रहते हैं। तो सिमिलरली जब क्या होगा, जितनी क्लोज होंगे न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन्स, जितना एवरेज डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, जितना एवरेज डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन्स का कम होगा, मतलब कि जितना मेन शेल क्लोजेस्ट होगा न्यूक्लियस के, उतनी ज़्यादा क्या होगी, शेल की या इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। स्टेबिलिटी ज़्यादा क्यों होगी, मैक्सिमम क्यों होगी, क्योंकि उस टाइम क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल नज़दीक होंगे न्यूक्लियस के, और न्यूक्लियस ने उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट रखा होगा। जितना अट्रैक्ट करके रखा होगा, तो एनर्जी उतनी लेस होगी इलेक्ट्रॉन्स की। तो एक क्राइटेरिया चलता है केमिस्ट्री के अंदर, मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिनिमम एनर्जी, या मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी।
जितनी कम एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। सो बस आपने ये याद रखना है कि जैसे जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी तो जो एवरेज डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन का वो भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे एवरेज डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ता जाएगा तो जो इफेक्ट है न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो इफेक्ट भी कम होता जाएगा। जैसे जैसे इफेक्ट कम होता जाएगा इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज करती जाएगी, एनर्जी इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज करती जाएगी तो स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। ठीक है, सो इट मीन्स जितना मेन शेल न्यूक्लियस के पास होगा उसके अंदर रिवॉल्व कर रहे इलेक्ट्रॉन्स की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी और एनर्जी उतनी ही कम होगी। मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी, कीप दिस थिंग इन माइंड। और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है तो जो स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स की वो कम हो रही है और एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ओके, लाइक यहां पर मैं लिखना चाहूं तो अगर मैं यहां पर स्टेबिलिटी का केस लूं तो के शेल के इलेक्ट्रॉन्स की स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी, एल की उससे कम, एम की उससे कम, एन की सबसे कम। रीजन क्या होगा, अगर मैं इस साइड को जाऊं तो क्या होगा, इस साइड को तो क्या कर रहा है, इस साइड को अगर इस साइड को बात करें तो स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही है। स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन शेल्स। शेल्स क्या होते हैं, एन की वैल्यू हमें शेल बताएंगे। ठीक है, आई होप लगा आपको पता। तो नेक्स्ट अभी हम क्या करेंगे, मैंने डिस्कस किया वो थोड़ा लिखूंगा यहां पर। तो अगर हम अब बात करें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन का एवरेज डिस्टेंस बताएगा न्यूक्लियस के सराउंडिंग। जितनी एन की वैल्यू ज्यादा होगी एवरेज डिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, जितनी एल की वैल्यू कम होगी एवरेज डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस से उतना कम होगा। ठीक है, सो वी कैन राइट दैट this quantum number, which quantum number, principal, this quantum number also tells the average distance, also tells the average distance of electrons from the nucleus। ठीक है, तो जितनी ज्यादा एन की वैल्यू होगी उतना ज्यादा डिस्टेंस होगा इलेक्ट्रॉन्स का फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, अगर वही अभी मैं डिस्कस करके हटाऊं, इफ एन इज इक्वल टू 1, अगर एन की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब क्या है, अब n होल नंबर से होल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, इससे कम वैल्यू हो नहीं सकती, n मिनिमम 1 होगा। अगर n 1 है तो इट मींस इट इज द क्लोजेस्ट, इट इज द क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सबसे नजदीक है। अब जितना नजदीक होगा, अभी डिस्कस किया पहले हम मैंने, एनर्जी उतनी क्या होगी, एंड हैज लोएस्ट एनर्जी या लीस्ट एनर्जी। आई होप क्लियर हो रहा है आपको। तो फिर कंक्लूजन क्या निकला, जैसे जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज करेगी एवरेज डिस्टेंस भी उतना ही इंक्रीज करेगा। एज द वैल्यू ऑफ एन, as the value of n increases, the distance of the electrons from the nucleus increases, from the nucleus increases,
एंड आल्सो द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट शेल इंक्रीजेस, एनर्जी भी बढ़ेगी जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी, एंड आल्सो द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in that shell increases। ठीक है, तो बेसिकली जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी न्यूक्लियस के से इलेक्ट्रॉन्स दूर होते जाएंगे, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स की कम होती जाएगी, एनर्जी बढ़ती जाएगी। जितना डिस्टेंस ज़्यादा है स्टेबिलिटी उतनी कम है, एनर्जी उतनी ज़्यादा है। जितना डिस्टेंस कम है स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा है, एनर्जी उतनी कम है। कीप दिस थिंग इन माइंड। ठीक है, ये चीज़ नोट कर लेनी है आपने जो अभी यहाँ लिखी है मैंने। तो फिर क्या सिग्निफिकेंस क्या है फिर पहले क्वांटम नंबर का, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या सिग्निफिकेंस है इसका, क्या क्या बताता है हमें ये। बेसिकली अभी हमने पढ़ के बैठे हैं हमें कि ये हमें क्या बताएगा, एवरेज डिस्टेंस बताएगा और साथ में एनर्जी। जितना डिस्टेंस ज़्यादा एनर्जी उतनी ज़्यादा, स्टेबिलिटी उतनी कम। जितना डिस्टेंस कम एनर्जी उतनी कम, स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। ठीक है, सो कीप दिस इन थिंक माइंड। सो दिस क्वांटम नंबर, so this quantum number tells the average distance of the electrons from the nucleus, average distance of the electrons from the nucleus and energy associated with it, and energy associated with it। आई होप क्लियर है आपको इतना। अभी हम सेकेंड क्वांटम नंबर पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर करने से पहले हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि ये के, एल, एम एंड एन ही क्यों लिखा जाता है शेल्स के लिए। लाइक एन की वैल्यू 1 है तो के, 2 है तो एल, 3 है तो एम, 4 है तो एन। ये कहाँ से आया, वाई के ही क्यों यूज़ किया केमिस्ट ने, कुछ और क्यों नहीं, ए बी सी डी क्यों नहीं लिख लिया इनके लिए। इसके पीछे भी एक रीज़न है। क्या है, देयर इज अ फेलो हुज नेम इज चार्ल्स जी बार्कला। So what is behind this K, L, M and N? Why N के लिए K 1 के लिए N 1 हो तो K लिखते हैं, N 2 हो तो L लिखते हैं, ऐसे सोन। K, L, M, N ही क्यों लिखते हैं, A B C D X Y Z, इसके अलावा कुछ और क्यों नहीं लिखते। इसके पीछे एक बड़ा तगड़ा रीज़न है। क्या, एक तो मैंने आपको बताया कि जितना न्यूक्लियस के नज़दीक हुआ शेल, नज़दीक है शेल, इसके लिए इट मीन्स एन की वैल्यू कितनी है, इसके लिए 1 है। और शेल कौन सा, नाम क्या दिया इसको, के शेल। जितना नज़दीक है, ठीक है, एनर्जी क्या उतनी, एनर्जी इज लेस एंड स्टेबिलिटी इज मैक्सिमम। अब इसको ध्यान में रखना है।
तो क्या है, फेलोज थे, उसका नाम क्या था, चार्ल्स जी बैकलर। तो इसने क्या किया, इसने एक्स रेज की स्टडी की। व्हाट ही डिड, इसने क्या किया, एटम्स को बम्बार्ड कराया विद हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो क्या पाया इसने, उस जब इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट कराई विद हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, तो एटम्स ने कुछ रेज एमिट की। ठीक है, कुछ एक्स रेज एमिट की। उन एक्स रेज में से एक की एनर्जी कम थी, एक की ज्यादा थी। ठीक है, what happened, there is a fellow whose name is Charles G. Beckler. What he did, he studied about X-rays. क्या एक्सरे में स्टडी किया उसने, उसने क्या किया, एटम को, एटम इज bombarded with high energy electrons. ओके, तो जब उसने हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट कराई एटम के ऊपर, तो एटम्स ने क्या किया, दे एमिट टू टाइप ऑफ रेज, दे एमिट टू टाइप ऑफ रेज। ओके, एक की एनर्जी कम थी, एक की एनर्जी ज्यादा थी। कौन कौन सी, टू टाइप्स, विद more energy and second one is with less energy. I hope लग रहा है पता क्या हुआ कि y के एलिमेंट क्यों ही लिखते हैं। There is a fellow whose name is Charles G. Beckler. He what he did, इसने एक्स रेज के ऊपर स्टडी की। इसने क्या कराया, जो एटम्स है, कुछ एटम्स को इसने बम्बार्डमेंट कराई, हाई इलेक्ट्रॉन्स, हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स कुछ एटम्स के ऊपर इसने हिट कराए। हिट कराने के बाद इसने क्या देखा, दो तरह की एक्सरेज निकली थी, एक की एनर्जी ज्यादा थी, एक की एनर्जी कम थी। उस टाइम पे इसने ना क्या किया, जिसकी एनर्जी ज्यादा थी उसको इसने बोल दिया टाइप ए। ठीक है, कि जब एटम्स को हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन के साथ हिट किया गया तो दो तरह की एक्सरेज निकली, एक की एनर्जी ज्यादा और एक की एनर्जी कम थी। जिसकी एनर्जी, जिस एक्सरेज की एनर्जी ज्यादा थी उसको इसने टाइप ए बोल दिया, और जिसकी एनर्जी कम थी उसको इसने बोल दिया टाइप बी। ओके, तो क्या हुआ, फिर बाद में इसने क्या किया, इनको नेम दे दिए, पर्टिकुलर नेम्स। जिसकी एनर्जी कम थी उसको इसने नाम दे दिया के, मींस के। एक्चुअली व्हाट इज के, अभी जो मैंने आपको अभी डिस्कस किया इसके अकॉर्डिंग K is a type of, किस कौन सी रेज की टाइप है, एक्स रेज। और एक पर्टिकुलर क्या है इसके रिगार्डिंग, whose energy is less, जिसकी एनर्जी लेस थी वो टाइप बी माना, टाइप बी को बाद में उसने नाम दे दिया K। तो ये भी पाया साइंटिस्ट ने क्या, कि जितनी एन की वैल्यू कम है, एन की सबसे कम वैल्यू 1 है, तो उस केस में सबसे कम एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन्स की। अब सबसे कम एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की, बेसिकली रेज एनर्जीज है, तो सबसे कम एनर्जी है, तो कम एनर्जी वाले को उनको क्या सूझा कि पर्टिकुलर क्या नाम रखें उस शेल का। तो जैसे कि इसने चार्ल्स जी बैकलर ने बताया था कि जो एक्स रेज की एनर्जी सबसे कम होती है उसको नाम उसने के दिया था। ठीक है, बाद में तो इसको यहां से देखते हुए, तो मेन शेल्स के लिए जिसकी सबसे वैल्यू, एन की वैल्यू सबसे कम है और एनर्जी सबसे कम है, उसको N1 के लिए उन्होंने क्या रख दिया, फिर K रख दिया। और जिसकी एनर्जी उसके ज्यादा थी उसका नाम क्या रख दिया, जिसने उससे टाइप ए माना था, बाद में नाम दे दिया उसको L शेल। तो बेसिकली KL लिखने के पीछे रीजन क्या है,
के किसके लिए लिखा जाता है, के तब लिखा जाता है जब एन की वैल्यू कितनी हो, 1 हो। एन की वैल्यू मिनिमम है, इससे मिनिमम नहीं हो सकती। जितनी मिनिमम वैल्यू है तो क्या होता है भी, जितने भी जब भी इलेक्ट्रॉन सबसे कम डिस्टेंस के ऊपर है न्यूक्लियस से, तो उन्होंने साइंटिस्ट ने क्या देखा कि उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। अब इस सबसे कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन जो पहले शेल में पड़े हैं, जिसके लिए एन की वैल्यू 1 है, उसके लिए पर्टिकुलर नाम क्या रखना चाहिए, उसके लिए उन्होंने ये क्राइटेरिया चूज किया जो इसने बताया था, चार्ल्स जी बैकला ने, कि जब एटम्स की बॉम्बार्डमेंट विद हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन के साथ करवाई जाती है तो 2 तरह की रेज इमिट होती हैं। एक की एनर्जी कम है, एक की एनर्जी ज्यादा है। जिसकी एनर्जी कम है उसको टाइप बी माना, जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसको टाइप ए माना। बाद में बैकला ने क्या किया, इनको पर्टिकुलर नाम दे दी कि जिसकी एनर्जी कम है उसको के दे दिया, जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसको क्या नाम दे दिया, एल। इसको देखते हुए फिर केमिस्ट ने आगे क्या किया कि जैसे एन की वैल्यू 1 है, एनर्जी सबसे कम है, तो इसलिए एक्स रे की टाइप के ऊपर डिसाइड करते हुए जब एन की वैल्यू 1 हो तो उसके लिए शेल के माना गया। ठीक है, और इसके पीछे कोई रीजन नहीं है। और के ही क्यों दिया उसने, कोई और क्यों नहीं दिए, इसके लिए ये माना था बैकली का कि सपोज कि इस एक्सरे की एनर्जी कम आई है, उसका मानना था कि ये नहीं पॉसिबल है, इन फ्यूचर और भी एक्सरेज ऐसी आएंगी जब हम एटम्स को इलेक्ट्रॉन के साथ बॉम्बार्ड कराएंगे जिसकी एनर्जी में भी हो सकता है इस एक्सरेज की टाइप से भी कम हो। तो फ्यूचर के लिए उसने स्पेस छोड़ दी, इसलिए उसने ए बी सी डी एफ जी कुछ नहीं यूज किया, तो उसके माइंड में जो है उसने के से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सो दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस, वाई के एल क्यों लिखा जाता है। आगे फिर सोन जैसे लेटर्स, इंग्लिश के लेटर्स कंटिन्यू करते हैं, एल के बाद एम एन लिख दिया गया, वो कुछ नहीं आगे। बेसिकली फीचर जहां से है, फंडा जहां से के और एल से। ठीक है, के एंड एल है क्या, ये दोनों क्या है, टाइप्स हैं। किसकी टाइप्स हैं, एक्सरेज की टाइप्स हैं। सो ये भी टाइप है, एल भी क्या है, एल इज टाइप ऑफ एक्सरेज। कैसी एक्सरेज, जिनकी एनर्जी क्या थी, ज्यादा थी, हुज एनर्जी इज मोर। ओके, आई होप अभी आपको लगा पता। अभी फाइनली हम सेकंड क्वांटम नंबर करेंगे, दैट इज कॉल्ड एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो आगे सेकंड जो क्वांटम नंबर की टाइप है दैट इज कॉल्ड एजीमुथल क्वांटम नंबर। ओके, एजीमुथल क्वांटम नंबर को एल के साथ डेजिग्नेट करते हैं। और ये क्या बताता है हमें, ये हमें बताएगा कि ऑर्बिटल कौन सा है। ओके, या ऑर्बिटल को सब शेल ही बोलते हैं, सब शेल कौन सा है। तो क्या लिखेंगे इसके बारे में फिर हम, तो इसको डेजिग्नेट एल के साथ करते हैं। सो दिस क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मीन्स कि सब शेल या ऑर्बिटल कौन सा है। दिस क्वांटम नंबर tells the this quantum number tells the angular momentum, जिसको हम n पाई आर के साथ लिखते हैं, tells the angular momentum, angular momentum of the electrons। तो यहां पर बेसिकली मैं बात करूं तो ये हमें क्या बताता है, जैसे n हमें मेन शेल बताता है, उन मेन शेल्स के भी आगे छोटे शेल्स होंगे जिनको हम सब शेल्स बोलते हैं। तो बेसिकली ये वाला क्वांटम नंबर हमें सब शेल बताएगा कि मेन शेल के अंदर और कितने सब शेल हैं। ठीक है, सो दिस इज टोल्ड बाय द विच क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो इसलिए इस क्वांटम नंबर को एंगुलर क्वांटम नंबर या सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। दिस क्वांटम नंबर
also called angular quantum number or subsidiary quantum number or subsidiary quantum number. Okay, so let's start. अभी करते हैं हम क्या करना है. The value of L क्या है? Azimuthal quantum number. The value of L gives the subshell in a given principal shell. Gives the subshells in a given principal energy shell. In a given principal एनर्जी शेल. ओके, वो कैसे? अब देखिए यहाँ पर एल कैसे चलता है, एल की वैल्यू कैसे निकलती है, कैसे फाइंड करते हैं. तो बेटा एल इज इक्वल टू, एल कैसे फाइंड करते हैं? 0 टू n माइनस 1. एल कैसे फाइंड करते हैं? 0 टू n माइनस 1. फॉर एग्जाम्पल लुक हियर, फॉर एग्जाम्पल एन क्या है? एन के बारे में पढ़ चुके हैं अभी हम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. फॉर एग्जांपल सपोज आपके पास एन की वैल्यू है 3. एन की वैल्यू 3 है. इट मींस कौन सा शेल है ये? मेन शेल कौन सा है? के एल. एल के बाद कौन सा आएगा तीसरे नंबर पर? एम. ठीक है, याद रखना आपने. तो एम शेल के लिए कितने सब शेल होंगे? जैसे एक रूम है, रूम के अंदर और छोटे छोटे कितने सेक्शंस होंगे? तो एक रूम जो है वो डेजिग्नेट करता है एन को, प्रिंसिपल शेल को, और जो छोटे छोटे सेक्शंस होंगे रूम के अंदर, छोटे छोटे भाग जो होंगे, पार्ट जो होंगे, वो रिप्रेजेंट करेंगे एजीमुथल को. तो एम आ गया मेन रूम, मेन शेल. तो उसके अंदर आगे जो सब शेल्स हैं वो एल के साथ करते हैं. फाइंड कैसे करने हैं देखो यहाँ पर. तो एल कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पर 0 टू n माइनस 1. एन कितना माना? 3. 3 माइनस 1, 3 माइनस 1. 0 टू 3 माइनस 1 कितना आ गया? 2. अब 0 2 के बीच जितने नंबर आते हैं वो भी लिखने हैं. तो 0 तो लिखना ही है, फिर 1 आ गया, फिर लास्ट में कौन सा है? 2. तो जब n की वैल्यू 3 हो तो l के लिए 3 वैल्यूज आई हैं. कौन कौन सी? 0, 1 एंड 2 एंड सो ऑन. फिर जैसे मेन शेल्स के जो है, मेन शेल्स को लिखा गया कि एल, एम एंड एन के लिए, एन के अंदर, ऐसे सब शेल्स को भी लिखा गया है किसी लेटर्स के साथ. वो कौन कौन से हैं अभी वो डिस्कस करेंगे अभी हम. तो अभी हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे कि एल की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है. और ठीक है, स्टार्टिंग से चलते हैं. एल क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर. फॉर एग्जांपल अलग अलग लिखिए, फाइंड करेंगे अभी. फॉर n1, अगर n की वैल्यू 1 है तो कैसे आएगा? एल कैसे आएगा? एल क्या लिखेंगे? एल इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1. ठीक है, 0 टू n कितना है? 1. 1 माइनस 1 कितना आ गया? 0. सो क्या होगा फिर? कितनी वैल्यूज आई इसके लिए? एल की वैल्यू कितनी? एल हैज़ ओनली, सिर्फ एक ही वैल्यू 0, हैज़ ओनली 1 वैल्यू.
ऐसे फॉर n इज इक्वल टू 2, L कितना आएगा, फॉर्मूला क्या है 0 to n माइनस 1, 0 to n कितना है 2 माइनस 1, कितना आ गया ये 0 to 2, तो बीच में जितनी वैल्यूज आएगी वो हम सारी लिखेंगे, सॉरी 0 to 1, 2 माइनस 1 1 आएगा, हो जाती कभी ऐसी मिस्टेक्स 0 to 1 कितना आ गया, फिर 0,1, कितनी वैल्यूज आई, 2 वैल्यूज, तो इसके लिए कितनी वैल्यू आई, L हैज़ 2 वैल्यूज। 2 वैल्यूज कब होंगी L की, जब n की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है, इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फॉर n इज इक्वल टू 3, तो L कितना आएगा, L इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है 0 to n माइनस 1, तो 0 to n माइनस 1, 0 to n कितना है 3 माइनस 1, तो कितना आ गया 0 to 2, 0 और 2 के बीच में जितने डिजिट आएंगे कितने आएंगे 0, 1, 2, तो कितनी वैल्यू आ गई 3, इसके लिए कितनी आ गई, L हैज़ 3 वैल्यूज। ओके, लास्ट अभी देखते हैं, लास्ट तो नहीं है बट ये हम यहाँ तक ही चलेंगे, n4, तो L का फॉर्मूला क्या है 0 to n माइनस 1, 0 to n माइनस 1, n कितना है 4 माइनस 1, कितना आ गया 0 to 3, 0 to 3 कितना आएगा, फिर सारे कंसिडर करेंगे डिजिट, कितना आ जाएगा 0, 1, 2 एंड 3, तो कितने आ गए यहाँ पर 4 आगे, L की वैल्यू कितनी आ गई 4, जब n 4 हो, सो L हैज़ 4 वैल्यूज। ओके, तो क्या होगा फिर, तो मैंने बताया आपको कि L की वैल्यू में सब शेल्स बताएगी ठीक है, अब इसको हम टेबल के रूप में समराइज करेंगे। तो ये वेरियस सब शेल्स है, उनको भी डेजिग्नेट किया जाता है सम लेटर्स के साथ, तो क्या फिर द वेरियस सब शेल्स हमें कौन सा कौन नंबर बताएगा, L की वैल्यू बताएगी, और वैल्यूज ऑफ L और वैल्यूज ऑफ L आर डेजिग्नेटेड बाय लेटर्स, आर डेजिग्नेटेड बाय सम लेटर्स, और जो लेटर्स जो चूज किए हैं वो स्पेक्ट्रा के अकॉर्डिंग चूज किए हुए हैं, ठीक है, तो लाइक क्या है, वैल्यू ऑफ L, तो डिफरेंट वैल्यू ऑफ L के लिए डिफरेंट डेजिग्नेशंस क्या दी गई हैं। अगर L आपका 0 है तो 0 के लिए डेजिग्नेशन दी गई L की वैल्यू को, वो दी गई है S, ठीक है, डेजिग्नेशन किसकी है, L की वैल्यू की डेजिग्नेशन है या फिर सब शेल्स की बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब L 0 है तो सब शेल S होगा, अगर L 1 है तो सब शेल P होगा, अगर L 2 है तो सब शेल आपका D होगा, अगर L 3 है तो सब शेल आपका F होगा, एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा आगे, बस आपने याद रखना है 0 फॉर S, 1 फॉर P, 2 फॉर D एंड 3 फॉर F, 0 1 2 3 SPDF। ओके, अब जो SPDF है ये स्पेक्ट्रा के अकॉर्डिंग ली गई है, इसके लिए क्या है, S मीन्स स्पेक्ट्रा क्या आता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे सेपरेट लेक्चर, P मीन्स प्रिंसिपल, D मीन डिफ्यूज,
F means fundamentals. Okay. सो अभी हम इसको लास्ट एक टेबल के अंदर समराइज करेंगे, देन यू विल अंडरस्टूड ऑल थिंग्स वेरी शार्पली. तो फॉर एग्जांपल अगर n की वैल्यू आपकी 1 है, n 1 है, तो मेन शेल कौन सा होगा? k. अब इसके लिए हमने फाइंड करनी है l की वैल्यू. l की वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? 0 to n-1. तो 0 to n-1 करेंगे तो एक ही वैल्यू आएगी. यहाँ मैं करता हूँ शो आपको. 0 to n-1 यानी कितना है? 1 तो सिर्फ ये 0 आ गई. तो सिर्फ एक वैल्यू आई है. ठीक है, ओनली 1 वैल्यू. तो कितने सब शेल हो गए? 1. यहाँ मैं डेजिग्नेट भी करता हूँ आपको. वैल्यू ऑफ L एंड डेजिग्नेशन. रिमेंबर इट. For 0 designation is S, for 1 designation is P, for 2 designation is D, for 3 designation is F. Okay. So जब n 1 होगा, L की वैल्यू 1 आई, सिर्फ वो 0 है, तो 0 है. 0 अगर L की वैल्यू 0 हो तो सब शेल को डेजिग्नेट S के साथ करना है. तो यहाँ मैंने सब शेल का नाम लिख दिया S. ओके. अब कौन सा S? हमेशा इसके आगे प्रिंसिपल क्वांट नंबर लगेगा. S की ये वैल्यू किस n के लिए है? जब n की वैल्यू 1 है. तो यहाँ पर आ गया 1s. इट मीन्स कि जो आपका फर्स्ट शेल है इसके लिए n की वैल्यू 1 है, इसको हम k शेल बोलते हैं. उसके अंदर सिर्फ एक ही सब शेल होगा. ठीक है, एक रूम है, उसके अंदर सिर्फ एक ही और सेक्शन होगा, दैट इज 1s फॉर n1. अगर n की वैल्यू 2 है, n 2 हो तो मेन शेल का नाम रखा है L. तो वैसे ही फॉर्मूला क्या आना इसका? 0 to n-1. n कितना है? 2 - 1. तो कितना आ गया फिर यहाँ पर? 0 to 2 - 1 कितना आ गया? 1. तो ये दो वैल्यूज आ गई 0,1. ओके. तो यहाँ पर मैं दो वैल्यूज लिखूंगा. वो कितनी वैल्यूज आई हैं? 2 वैल्यूज. कौन कौन सी? एक आई 0, एक आई 1. ये 0 के लिए थी, ऊपर वाले के लिए. तो 0 के लिए देखो यहाँ पर सब शेल कौन सा होता है? S. 1 के लिए देखो वहाँ पर सब शेल कौन सा होता है? P. अब कौन से S एंड कौन से P है? इनके लिए n की वैल्यू क्या ली हमने? 2. तो ये कौन सा आ गया? 2s एंड 2p. इट मीन्स जब L है, L मेन शेल के लिए दो सब शेल होंगे 2s एंड 2p. अभी चलते हैं n की वैल्यू 3 के. जब n की वैल्यू 3 हो तो शेल का नाम है M. अगेन फॉर्मूला 0 to n-1. 0 to n-1. n कितना लिया? 3. 3 - 1. तो 0 to कितना आ गया फिर? 3 - 1 कितना आ गया? 0 to 2 आ गया. फिर 3 वैल्यूज आ गई इसके लिए 0, 1, 2. 0, 1 एंड 2. अब देखो यहाँ पर 0 के लिए S, 1 के लिए P, 2 के लिए D. अब कौन से SPD? कौन सा मेन शेल है? N. 3 है. 3s, 3p एंड 3d. तो कितनी वैल्यूज आ गई सब शेल की? जब n 3 होगा सब शेल भी कितने होंगे? 3 ही होंगे. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में बताया मैंने आपको ये. जब n की वैल्यू 4 हो तो सब शेल होगा n. ओके. तो अगेन फार्मूला फाइंड करते हैं. 0 to n-1. 0 to n कितना है यहाँ पर? 4. 4 - 1. ये कितना आ गया? 0 to 4 - 1 कितना आ गया? 3. अब 0 3 के बीच में जितने डिजिट आते हैं वो लिखने हैं सारे. 0 भी लिखनी है. 0, 1,
2 and 3, 4 वैल्यूज आई, या 4 लिखेंगे एल की वैल्यू सब शेल्स 0 1 2 एंड 3। अब जब 0 है तो देखो 0 के लिए सब शेल एस लिखा गया है, 1 के लिए P, 2 के लिए D, और 3 के लिए F। ठीक है, अब कौन से एस पी डी एफ एन कितना है इसके लिए 4, तो 4S 4P 4D एंड 4F। तो जब एन की वैल्यू 4 है तो सब शेल भी कितने आए, 4 वैल्यूज आई सब शेल के लिए। तो रिमेंबर इन दिस माइंड, कीप इन दिस थिंग इन माइंड, मेन शेल 1 के लिए के लिए एक ही सब शेल होगा 1S, मेन शेल 2 के लिए इसको L बोलते हैं, उसके लिए 2 सब शेल होंगे 2S एंड 2P। मेन शेल 3 जिसको M शेल बोलते हैं उसके लिए 3 सब शेल होंगे 3S 3P एंड 3D। मेन शेल 4 जिसको N बोलते हैं उसके लिए 4 सब शेल होंगे 4S 4P 4D एंड 4F। आई होप स्टूडेंट्स आपको अंडरस्टूड हुआ आज का लेक्चर। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द रिमेनिंग, so in next lecture we will discuss the remaining 2 type of quantum numbers, and they are magnetic quantum numbers and spin quantum numbers. I hope today lecture you all have understood today lecture. So comment on today lecture how was it gone, and also if you have not subscribed my channel till, so subscribe it, okay, and do press bell icon. Thanks for watching this video.